रिप्रोडक्शन ये हम कंटिन्यू रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रीवियस टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का जो कंप्लीट है, फिर नेक्स्ट सेकंड यूनिट पे जाएंगे। जस्ट क्विक एक रिवीजन टाइप है, मैं ऑलरेडी आगे बता चुकी हूँ, पर डाउट्स की वजह से आई एम जस्ट क्लियरिंग इट। रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गे में बेसिकली किस टाइप से होता है? तीन टाइप से, वेजिटेटिव, asexual and sexual। ये earlier भी I have mentioned कि वेजिटेटिव में क्या होगा, पेरेंट सेल से ही पार्ट्स या सेक्शंस डिवाइड हो गए या फ्रेगमेंट्स डिवाइड हो गए, वो न्यू इंडिविजुअल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एंड asexual reproduction में spores are formed, gametes are to be formed but they do not fuse with each other। Gametes can be formed from different plants or different morphological, physiological algae, but they do not fuse. In asexual, the gametes do not fuse; they independently, directly develop into a daughter cell. Now, third is sexual reproduction. Sexual reproduction is what in which two gametes they come in contact, they evolve, dissolve, withdraw their walls, and then they fuse and form zygote. Their fusion is not going on, and in sexual fusion is going on. And vegetative, that is direct a segment of has been cut off from a parent cell, then a daughter will develop, a daughter plant or daughter algae or spore will develop. Basically. Now we are discussing our first vegetative type of reproduction. The detailed study in which vegetative type of reproduction is also for the various types. Okay, vegetative type of reproduction that I told that you can write on your own language. Just explain it in 2 or 3 languages. That is vegetative reproduction. That in which a fragment or a section has been cut off from a parent body or parent part and then detached, separated, and then it can independently grow a new individual. This you can even write. Now types of vegetative reproduction. Vegetative reproduction also has various steps that are just told you on previous class that fragmentation, filaments, we have filaments on algae, filamentous body of thallus. That filaments can be separated by filamentation, by fragmentation, various types are there. So we are discussing about first type, that is cell division. Cell division of fusion. Now cell division. What you can understand in cell division, that is cell has been getting divided. Now cell is dividing in what? In only those algae that are uninucleated, that has only single cell, that we can say volvox, Chlamydomonas. They are uninucleated algae. In that the cell division occurs. Cell division is found basically, now I am explaining the cell division of fusion. Cell division is found in unicellular algae, example Euglena and Chlamydomonas, in which a single cell divides into two daughter cells. The cell divide mitotically to form two daughter cells, which each grow into an independent organism. From one, they are getting two daughter cells and they are getting two different individuals, but they are similar in morphology and physiology because they are directly generated from their parents and they don't have vegetative reproduction में बेसिक क्या होता है कि इसमें वेरिएशंस नहीं होते, डीएनए आरएनए म्यूटेशन वगैरह क्रॉसओवर नहीं होता है, तो उसमें वेरिएशंस नहीं होते। पेरेंट के जो फीचर है या जो कैरेक्टर है वो डायरेक्ट that are going to transfer to the daughter or to the young ones. लेकिन अगर हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उसमें हाईली
कैपेबिलिटी होती है कि उसमें वेरिएशंस हो। फर्स्ट हो गया सेल डिवीजन, इसमें एग्जांपल आ रहा है ग्लीना एंड क्लोमाइडोमोनास। सेकंड है हमारा fragmentation. How fragmentation are done? A fragment has been cut and then developed into new individual. In filamentous form, filamentous like I said, in this type, a single fragment can be cut from this there by external digitalization and by or cell division, or we can say we have a separation disk we can develop here due to development of cell, और heterocyst can be formed. Heterocyst form होता है जो डेड सेल होती है, उधर से अगर ये सेक्शन has been cut off, अगर ये सेक्शन cut off हो जाएगा, then it has the capability to develop into new individual independently. ऐसा नहीं कि सेपरेट होकर डेड हो जाएगा या ग्रो नहीं कर सकता, इट विल डेवलप फंक्शन एज अ न्यू इंडिविजुअल। अब फ्रेगमेंटेशन के अंदर एग्जांपल है उलोथ्रिक्स, उडोगोनिया एंड स्पाइरोगोरा। उलोथ्रिक्स, उडोगोनिया एंड स्पाइरोगोरा। The thallus often break into small fragments. इसमें thallus इसमें break into small fragments या earlier समझा चुके, ठीक है। थर्ड जो है वो आ रहा है हार्मोगोनिया। अब हार्मोगोनिया में क्या होता है? इट इज मेथड इन ब्लू ग्रीन एल्गे अंडर फेवरेबल कंडीशन द ट्राइकोम ब्रेक इनटू मोटाइल और वेरी थिन ट्राइकोम, पर ट्राइकोम न्यूक्लियर में ये ब्रेक होके न्यू इंडिविजुअल बनेगा जो कि that can be motile and varying है, जो कि मोटाइल नहीं हो सकता और लेंथ उनका वेरी कर रहा है। हार्मोगोनिया पेरेंट में होता है जबकि उनके अंदर एक डेड सेल्स हो जाते हैं। हार्मोगोनिया इन पेरेंट इज ड्यू टू डेथ एंड डीके ऑफ सेल्स और इंटरकेलरी हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट की हेटेरोसिस्ट डेड सेल्स होती है ना, अगर हेटेरोसिस्ट अगर किसी पेरेंट है, पेरेंट के अंदर या पेरेंट फिलामेंट के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो फिर हम होने का है कि एक सेगमेंट सेपरेट होकर मोटाइल बना के मोटिलिटी करके न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ एडवांटेज ब्रांचेस, मतलब किसी भी ब्रांचेस के अंदर रूट वगैरह को डेवलप होके न्यूली ग्रो कर लेना। अब इसमें क्या होता है? हार्मोगोनिया में पढ़ लिया। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एडवांटेज ब्रांचेस। इसमें होता है ब्रांचेस जो बनती हैं, नेम से पता चलता है कि ब्रांचेस डेवलप हो रही है, तो सेपरेट ब्रांचेस बन रही है। तो ये ब्रांचेस क्या है? पेरेंट हेली से सेपरेट होके नया इंडिविजुअल बना दिया। ब्रांचेस है तो ऑब्वियसली ब्रांचेस से जर्मिनेट होगा, कोई भी फर्दर किसी भी एल्गे टाइप ऑफ एल्गे के अंदर ब्रांचेस बनते हैं तो वो सेपरेट होके नया इंडिविजुअल बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबर्स। इसमें क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसके अंदर स्टोरेज मटेरियल होता है। मैंने बताया कि कभी-कभी एल्गे के अंदर एक अनसुटेबल टाइप के स्ट्रक्चर्स में ग्रो कर लेता है। ये प्लांट की बॉडी के अंदर एक अलग सेगमेंट या तो एक्सटर्नली अगर ग्रो करने लग जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? बेसिकली एक्सेप्शनल केस होता है, बेसिकली वाटर स्टोर हो जाता है या उसमें वो अपना प्लांट अपना फूड स्टोरेज कर लेता है। तो ये जो फूड स्टोरेज वाला जो पार्ट है सेक्शन, इसमें वैसे ही डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होती जैसे कि उस एल्गे के थैलस के अंदर होती है, लेकिन फिर भी ऐसा है पर्टिकुलर कैरेक्टर वाला कि वो सेपरेटली इंडिविजुअल में ग्रो कर लेता है। ट्यूब्यूल्स मतलब एक्स्ट्रा उसके बॉडी पार्ट से निकला हुआ वो चीज जो कि स्टोरेज मटेरियल स्टोर करेगा, लेकिन फिर भी स्टोरेज बी एंड स्टोरेज मटेरियल
वो सेपरेट होके इंडिविजुअल में ग्रो कर पा रहा है इजीली। Tube-like structure is formed due to storage of food material. These get detached and developed into separate plant. इसमें एग्जाम्पल क्या है? कारा। ना हमारा जो लास्ट टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दैट इज बर्डिंग। बट तो आपको पता है एक स्मॉल ट्यूबुलर बर्ड टाइप निकलते हैं। जैसे इसमें बेसिकली एग्जांपल लीजिए पोटैटो। हम घर में पोटैटो रखते हैं, उनको अगर मॉइस्चर एनवायरनमेंट या ऐसा वाटर सप्लाई है कुछ मॉइस्चर एनवायरनमेंट मिलता है तो उसमें बर्ड्स निकलने लग जाते हैं। उन बर्ड्स को आप अगर उससे एक सेक्शन से सेपरेट करके अगर सेपरेटली ग्रो करेंगे तो उनमें रूट्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो बड़ी पहले पर्टिकुलर बर्ड निकल के फिर वो ग्रो हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स। ये हो गया रिप्रोडक्शन जो कि हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम आएंगे वेजिटेटिव। इधर आपने देखा इसमें सब में कहीं पे भी फ्यूजन हुआ नहीं, सब में क्या हो रहा है कि पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल या न्यू सेगमेंट बन रहा है और फिर वो इंडिविजुअली डेवलप हो रहा है। ये हो गया कॉमन फीचर्स में। नेक्स्ट हम आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। Asexual reproduction भी फर्दर इसी टाइप से वेरियस टाइप्स में डिवाइडेड है। हम वेरियस इसको सब पॉइंट्स में क्यों डिवाइड करते हैं क्योंकि इजी है। अब आपको वेजिटेटिव का तो पता चल गया कि वेजिटेटिव में होता है कि वो मिक्सिंग नहीं होता, मतलब दोनों का फ्यूजन नहीं हो रहा सॉरी। लेकिन ये इसके फर्दर डिवीजन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अलग-अलग टाइप्स हो रहा है उसमें भी। अब डायरेक्टली वो चलो मिक्सिंग नहीं हो रहा, वो दोनों का फ्यूजन नहीं हो रहा, वो कंप्लीट हो गया नहीं। लेकिन अब आपको सेल डिवीजन में पता चला कि ये तो फिर सिर्फ यूनिन्यूक्लिएटेड के अंदर होता है। अच्छा ट्यूब्स वाले में होता है, एक थैलस से होता है, एपिथेलियस ब्रांचेस वाला है। दूसरा हमारा फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन आप जिसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्रेगमेंट वाला प्लांट होगा उसमें होगा ना। अब आप यूनिसेलुलर वाले प्लांट जैसे टोमेटो के अंदर देख लीजिए, इसमें होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। वो बेसिकली इसमें होगा या तो नॉस्ट्रल या आइसोलेटेड के अंदर जिसमें ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, फिलामेंटस बॉडी होती है, उसी में होगा। इसलिए इसके अंदर सब डिवीजन होता है। ऐसा नहीं है कि ये टर्म्स में आप गेटिंग टू कंफ्यूज हो गए, सो मेनी टर्म्स टू रिमेंबर। नो, सिंपल है। आप इसको लिंक्ड करके देखिए तो लिंक्ड करके हो जाता है। अब एल्के का अगर आपने फर्दर आगे बनाया तो उसे लिंक करके देखा, अच्छा ये एल्के ऐसे दिख रहा था, ये ऐसा दिख रहा था, तो उसमें उस तरीके से होगा, उस तरीके से। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरियस 5 टाइप्स से होता है, लेकिन मैं जनरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। Asexual reproduction involves regeneration of protoplast and reproductive bodies are either naked or provided with a newly synthesized wall of their own. It is accomplished by using specially differentiated cells that are capable of multiplying directly without fusion of the cell. Reproduction. This is a short form of reproduction. Reproduction
बेसिक इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। Asexual reproduction क्या होता है? Asexual reproduction is accomplished by using specially differentiated cells that are capable of multiplying directly to algae without fusing up with other cells. So directly new different individual algae के अंदर डेवलप हो रही है किसी और सेल के साथ या किसी और सेक्शन के साथ पार्ट के साथ फ्यूज ना हो। अब इसमें the process whereby the protoplast is released from the algal cell and germinate to form a new plant. Asexual reproduction takes place by variety of motile and non-motile spores. Basically spores develop हो रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? Spores sometimes have to migrate or they have to shift their place. तो कहीं से कहीं और डेवलप होने के लिए शिफ्टिंग करनी पड़ेगी तो इसलिए और कुछ होते हैं कहीं सेपरेटली उसी प्लेस पे ग्रो हो जाते हैं तो उसमें उनकी मोटेलिटी और नॉन मोटेलिटी कैरेक्टर आएगा कि वो बेसिकली दोनों टाइप्स के हो सकते हैं आइदर दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल by what time they will be motile and non motile due to the presence of flagella in them. Flagella helps them to swim or just help them to do the movement. All the spores will germinate without multiplying, without fusing from other individual. Spores further asexual reproduction में what we are getting spores. Further spores होंगे किस टाइप के ऊपर कैसे उसके अंदर डेवलपमेंट होगा वो हम देखेंगे। अब asexual reproduction में टाइप्स देखेंगे 5 टाइप्स ऑफ asexual reproduction होता है। मैं नेम लिख के नेम के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और नेम के साथ आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। First one is zoospore, that is common one. Zoospores. These are motile naked structure of two or more or many flagella. Zoospores are motile structure with two or either four or many flagella. The flagella inserted anteriorly where the flagella is present at the anterior point. The flagella is inserted anteriorly but are lateral in some brown algae. The zoospore has a bit of chloroplast and eye spots. Earlier हमने सेल पढ़ी थी क्रोमैटोफोरस सेल एंड साइनोफाइसिन सेल उसमें क्या प्रेजेंट था आई स्पॉट भी प्रेजेंट थे क्रोमैटोफोरस सेल के अंदर आई स्पॉट दैट आर लाइट रिसेप्टर आई स्पॉट्स टूल्स हो गए। Earlier topics which we have completed because they are going we are going to use them further. These are eye spots like mitochondria nucleus present होता है ऐसे ही eye spots में इसके अंदर एक फीचर है जो एक लाइट रिसेप्टर है लाइट को रिसीव करता है और फर्दर उसको फिर ट्रांसफर कर देता है किसमें क्लोरोफिल ए के अंदर। Light, sunlight is essential requirement, important requirement for all plants. Zoospore has a bit of chloroplast and eye spots. The cell-forming zoospore is known as zoosporangium cell. The cell that are found in zoospores that are known as zoosporangium. Example basically zoospores किसके अंदर होता है? उडोगोनिया एंड वॉचेरिया के अंदर। उडोगोनिया वॉचेरिया के अंदर। एग्जांपल भी हमको साथ में याद करने चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली सिमिलर मैंने बताया ना एग्जांपल के वर्ड्स वही हैं जो हम आगे डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो उससे लिंक करके आप इजीली अगर आप भूल भी जाए ना तो उसको में क्या करना आप इजीली लिख सकते हैं। A single zoospore undergo a repeated division and each segment form a single zoospore. अब zoospore एक है
फर्दर रिपीटेड डिवीजन हो जाएगा, मतलब 2 में 2 में डिवाइड हो गया, 2 से फिर 4 में हो गया, 4 से 8 में 16 में 32 में फर्दर डिवाइड हो गया, फिर ये ज़ूस कोर्स बाहर निकल के फर्दर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। ये हो गया ज़ूस कोर्स, इसमें एक फर्दर कोर्स बन रहा है, फर्दर डिवीजन कर रहे हैं इनटू मैंने ज़ूस कोर्स के अंदर क्या होता है, ज़ूस कोर्स बनते हैं और उसकी फंक्शन इज नोन एज ज़ूस स्पोरेंजियम। एग्जांपल इसके दो हैं, देखा Pudogonium and Bacteria। complete explanation with example। भूलेंगे नहीं भूलेंगे, ऐसी चीजें नेम से याद है, भूलना ही नहीं। नेक्स्ट इज एल्पेनोस्पोर्स। ये होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। मींस ज़ूस्पोर्स क्या है, मोटाइल के फ्री मूवमेंट, दे आर डूइंग मूवमेंट, दे आर capable of doing movement and they have flagella from 2 to 4 or many flagella। एल्पेनोस्पोर्स क्या है, नॉन मोटाइल होते हैं। These are non-motile spores commonly found in terrestrial algae basically, but some aquatic algae, Eurythrace microspora also form them during drought conditions. They differ in zoospore in having a distinct form and in absence of flagella, each cell from a single albino or its protoplast will divide to form many albinospores। और इसमें क्या है, flagella present is direct है, flagella present है, further ये divide further, each cell in its own अपने ही अंदर को डिवाइड करती है और further नो स्पोर्स बनाती है, जो कि क्या है, विदाउट फ्लैजेला। नेक्स्ट हमारा आता है अब एल्पेनोस्पोर्स कुछ एल्गे के, एल्पेनोस्पोर्स के अंदर क्या होता है, एल्पेनोस्पोर्स होते हैं कुछ एल्गे के, जैसे हम कह सकते हैं पिडेस्ट्रम और स्पैलरम, वो सीक्रेट करते हैं थिक वॉल। उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, टू ओवरकम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिसेक्शन। थिन वॉल्ड एल्पेनोस्पोर्स आर कॉल्ड हैप्लोस्पोर्स। बेसिकली सेम एल्पेनोस्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एल्पेनोस्पोर्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, कैन यू सी द डिफरेंस, smallest thin and smallest thick। तो ये डिफरेंस होता है, जिसकी वॉल थिन है वो एल्पेनोस्पोर्स है और जिसकी वॉल थिक है वो हैपेनोस्पोर्स। बस एक बेसिक ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और ये थिक वॉल वाले फर्दर होते हैं इंडिविजुअल में, इसमें भी प्रोटोप्लास्ट और ज़ूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ज़ूस्पोर्स भी बना सकते हैं, लेकिन फर्दर डिवीजन करके नए इंडिविजुअल डेवलप कर देते हैं। कौन से, हैपेनोस्पोर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे, दैट इज टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट जो होता है, प्लांट दैट इज ह्यूमन प्लांट, कुछ एल्गे का, उसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिन्हें टेट्रास्पोर्स बोलते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, उन नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम टेट्रास्पोर्स कहते हैं। They are formed within tetrasporangium usually by meiosis and are haploid। और ये किससे, meiosis से बनते हैं, meiosis से जब फॉर्मेशन हो रहा है, here they are in haploid condition and is haploid and one is diploid। तो वो haploid condition में होते हैं और ये बेसिकली जर्मिनेट करते हैं किससे, haploid plant से। बाकी बेसिकली किससे, diploid plant से जर्मिनेट होते हैं, लेकिन इसमें टेट्रास्पोर्स के अंदर ये हैप्लॉइड प्लांट से जर्मिनेट होते हैं।
देती हूँ तो एन से डिनोट हो जाएगा हैप्लॉइड और एन इज डिप्लॉइड। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा पॉइंट आ रहा है ऑटोस्पोर्स। फोर्थ हो गया टेट्रास्पोर्स, अब आ रहा है ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स में क्या होता है, एल्पेनोस्पोर्स विद अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू पेरेंट सेल आर ऑटोस्पोर्स, यानी ऑटो यानी खुद की स्पोर्स जिसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो स्पोर्स क्या होंगे डायरेक्ट पेरेंट के जैसे होंगे, उसमें कोई भी सेपरेट फीचर नहीं होगा, जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, एक जैसे दिखने वाले पेरेंट के जैसे दिखने वाले सेल्स होंगी, उन्हें ऑटोस्पोर्स बोलते हैं। ऑटोस्पोर्स हो गया पेरेंट के जैसे दिखने वाला। टेट्रास्पोर्स में क्या होता है, नॉन मोटाइल लेकिन हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप करेंगे, इसमें टेट्रास्पोर्स होते हैं और हैप्लॉइड जो होते हैं एन वाले स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करेंगे। अब हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो रिवाइज कर रही हूं एक सीक्वेंस में, नीचे से ऊपर ऑटोस्पोर्स होने लगे, टेट्रास्पोर्स होने लगे, हैप्लॉइड होंगे, मोनाइल स्पोर्स डेवलप होंगे, उन्हें टेट्रास्पोर्स बोलते हैं। हैप्लॉइड में क्या होता है, वो हैप्लॉइड जिसके अंदर क्या है, सेल वॉल क्या है हैप्लॉइड के अंदर थिन है, लेकिन हैप्लॉइड के अंदर क्या होती है, जो सेल वॉल है उनकी थिक हो जाती है, वो फर्दर डिवीजन करके न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। इसमें ये फीचर इसलिए आ रहा है कि होता है ना कभी कभी हमको पता कि जैसे अगर सेल वॉल उसकी थिक है तो बेसिकली मे बी उसकी सेल वॉल डिफ्यूज ना हो, या वो सेल वॉल एलनेट डिफ्यूज ना हो के एलनेट ना हो, उसके स्पोर्स वो बाहर नहीं बना रहे निकाल रहे, इसलिए फीचर्स में डाले गए कि नहीं बी उसकी सेल वॉल मोटी होने के बावजूद, सिंगल में डाल देती हूं, मोटी होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, फर्दर आगे डिवीजन कर रहा है, स्पोर्स बना रहा है, और वो स्पोर्स को फ्रीली इन्वायरमेंट के अंदर भी अपने सराउंडिंग में दे रहा है, जिससे वो नया इंडिविजुअल एक नया एल्गे कह सकते हो, एक नया एल्गे बना। ये हो गया एल्पेनोस्पोर्स में क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्स, वो जो पेरेंट के जैसे होगा, बेसिकली वो नया इसको फर्दर डिवीजन करके उसके अंदर फर्दर को अलग-अलग सेक्शन, अलग-अलग पार्ट्स में नंबर्स में डिवाइड होके स्पोर्स बनेंगे, तो हो जाएंगे एल्पेनोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स में होते हैं जो कि ज़ूस्पोर्स बोलते हैं, जो मोटाइल होते हैं और नेगेटिव होते हैं। एल्पेनो में नॉन मोटाइल हो गया, ज़ूस्पोर में लिख दीजिएगा मोटाइल है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ज़ूस्पोर्स बने, फर्दर फिर वापस उसमें डिवीजन हो गया और वो नए इंडिविजुअल बन गए। अब मोटाइल आ गया, मोटाइल के अंदर ये भी आप पॉइंट डालिएगा कि दे हैव फ्लैगेला में फ्लैगेला प्रेजेंट है। ये हो गए हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 टाइप्स। अब नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट जो हमारा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइक अर्लियर मैंने आपको बताया क्या हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल में ये स्पोर्स बन रहे थे, गैमेट्स बन रहे थे, लेकिन इनमें क्या हो रहा था, फ्यूजन दोनों का नहीं हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दे विल फ्यूज, दोनों गैमेट्स आएंगे, दोनों फ्यूज होंगे एंड देन वो न्यू इंडिविजुअल बनेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों सेपरेटली इंडिविजुअल को बनाना है, दो फ्यूज होंगे, इसमें एक ही इंडिविजुअल बनेंगे, उसमें दो जो थे स्पोर्ट्स निकाल थे वो दो अलग-अलग इंडिविजुअल बना रहे थे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गे एक्सेप्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली किसमें नहीं होता, साइनोफाइसी के अंदर, साइनोफाइसी फैमिली के अंदर all group of algae except Cyanophyceae reproduce sexually when gametes fuse to form zygote. Gametes ये generally fuse to form a zygote. Gamete दोनों fuse होके क्या बना रहे हैं,
zygote बना रहे हैं, then zygote will further develop into a new young one. In contrast to vegetative and asexual reproduction, it leads to the creation of new combination of gene by gene pulling together. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक कैरेक्टर से डिफरेंट क्या होगा कि इसमें वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि वो दो गैमेट्स अगर यूज हो रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली कैसा होगा, उसका भी एक कैरेक्टर आएगा और इस गैमेट का भी एक कैरेक्टर आएगा। अब जो दो गैमेट्स हैं, एक प्लस स्ट्रेन का होगा, एक माइनस स्ट्रेन का होगा, मे भी दो गैमेट्स यूज हो रहे हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया, कैरेक्टर्स वेरिएशंस आ रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे क्या होगा, इसके अंदर दोनों में वेरिएशन होगा, कैरेक्टर का डिफरेंट कैरेक्टर आएंगे, न्यू कॉम्बिनेशन होंगे, नया इंडिविजुअल बनेगा, मे भी उसमें वैरायटी होता है। तो इवोल्यूशन में ये एक चीज बेसिकली हेल्प करती है कि वेरिएशंस आना। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फर्दर 6 टाइप्स का है, 6 टाइप्स का है, जो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा टर्म से, कुछ माइंड में रख लीजिए तो वो टर्म से हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 6 टाइप्स का, और सेक्सुअल का हमारा 5 टाइप्स का हमने पढ़ा। सेक्सुअल के अंदर है ऑटोगैमी, फर्स्ट है ऑटोगैमी, हम फर्दर आगे भी पढ़ चुके। पॉलिनेशन हमने पढ़ा था स्कूल में, पॉलिनेशन होता है एक स्पोर्स दूसरे स्पोर्स में, या एक कह सकते हैं एक गैमेट में, स्पोर बेसिकली गैमेट होता है, मेल फीमेल गैमेट, एक गैमेट दूसरे में पॉलिनेट होता है, इंसेक्ट्स वगैरह हेल्प करके उसको पॉलिनेशन करना है। लेकिन ऑटोगैमी में क्या होता है कि वो स्पोर्स या गैमेट्स अगर जो बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, वो क्या होंगे, सिंगल मदर सेम मदर सेल या सेम एक ही, जैसे ये चलो हमने देख लिया, सॉरी वॉच एरिया है, ठीक है, इसी अगर इसके स्पोर बन रहे हैं बेसिकली, तो दोनों जो स्पोर बन रहे हैं वो सीके बन रहे हैं और वो जाके फ्यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिफरेंट प्लांट से बन रहे हैं। ऑटोगैमी में बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में ऑटोगैमी के लिए दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और ऑटोगैमी में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर आपको सेपरेट दूसरी बॉडी या दूसरा एल्गे दूसरे प्लांट की नीड नहीं होती है। ये टर्म जू में एनिमल्स के अंदर भी अप्लाई होता है और हायर प्लांट्स के अंदर भी अप्लाई होता है। ये तो लोअर प्लांट्स हैं, डिफरेंशिएटेड लोअर प्लांट्स होते हैं, बेसिकली क्या होता है जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स वगैरह नहीं होते। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसमें सिंगल सेम प्लांट जो है वो फर्दर फर्टिलाइज कर रहा है, खुद का गैमेट्स निकाल के खुद ही उसको फर्टिलाइज करेगा। यह सिंगल मदर सेल के अंदर से ही दो गैमेट्स निकल रहे हैं और वो फर्टिलाइज हो रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बेसिकली बताया कि दो डिफरेंट पेरेंट्स से होके फिर फ्यूजन होगा, इसमें ऑटोगैमी होता है जिसमें दो डिफरेंट गैमेट्स निकल रहे हैं, लेकिन वो किससे है, ओरिजिनेट हुआ है उनकी सेम मदर से, मतलब उनका अगर बन रहे हैं दो गैमेट्स तो वो किससे, एक ही प्लांट से बन रहे हैं, सिंगल प्लांट से बन रहे हैं। इजी ऑटोगैमी मींस सेल्फ फर्टिलाइजेशन जनरल में, व्हेन टू गैमेट्स की जनरल एक्सप्लेनेशन अपने लैंग्वेज में बोलो, व्हेन टू गैमेट्स ऑफ द सेम मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। इन दिस प्रोसेस देयर इज ओनली कैरोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू गैमेटिक न्यूक्लियर, बेसिकली कैरोगैमी होता है। अब ये टर्म भी ऐसा है, टू मार्क्स में आ सकता है, कैरोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, पूरा गैमेट यूज करते हैं। कैरोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर। अब ये फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर में ये दो स्पोर्स हैं, बीच में सेंटर में इसके न्यूक्लियस है प्रेजेंट, ये फ्यूजन कर रहे हैं फर्दर, ठीक है। अब ये फ्यूज हो रहे हैं तो क्या होगा, इनकी सेल वॉल डिसॉल्व होगी ना, अब सेल वॉल डिसॉल्व होके एक ही बने सेल वॉल, तो इस स्टेज में क्या हुआ, सेल फ्यूजन क्या हुआ, अंदर के
न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ ना, इसलिए कैरोगैमिक फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को टाइप है। लेकिन वहां पर क्या मतलब है कि सेल्फ फ्यूजन हो रहा है कि मदर सेल से जो गैमेट्स है वो आ रहे हैं। ऑटोगैमिक जनरल आपने लिख सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेम मदर सेल से होगा। सेकंड है हमारा हेलोगैमिक। हेलोगैमिक में होता है कि टू डिफरेंट जो गैमेट्स होंगे वो फ्यूज होंगे। टू डिफरेंट यानी दो अलग-अलग पेरेंट्स के गैमेट्स आके फ्यूजन करके नया फ्यूज बनाएंगे। इसमें दो डिफरेंट गैमेट्स होंगे, क्या होंगे? प्लस एंड माइनस स्ट्रेन हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल हो जाएंगे। हेलोगैमिक बेसिकली क्या हो रहा है? टू डिफरेंट गैमेट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन आर गेटिंग फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग zygote. In some unicellular vegetative cell of different strain plus and minus female behave as gametes and fuse to form zygote. ये हो गया फॉलो फटाफट एक टर्म्स के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जो टर्म है आगे हम बहुत ज्यादा एज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बताने होगा कि आप इस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए तो उसमें आइसोटोनिक बहुत जनरली यूज होने वाला है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक होता है जो कि अब इसमें गैमेट्स बन रहे हैं सामने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो गैमेट्स जो कि क्या होंगे फिजियोलॉजिकली या अर्लियर मैं टर्म वापस यूज कर चुकी हूं, फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। अब मैंने ये सिमिलर वर्डिंग ये हो गया। ऐसे करके दो गैमेट्स विल फ्यूज, इसमें भी गैमेट्स फ्यूज करेंगे लेकिन बोथ गैमेट्स आर फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम कैसे? मतलब दोनों सिमिलर गैमेट्स होंगे। फिजियोलॉजिकली सेम होने का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शन कैसे करता है उसके क्या क्या फंक्शन है गैमेट्स के, ठीक है? वो कैसा फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है? जैसे अगर मोटाई है तो वो वाला भी मोटाई होगा, ये नॉन मोटाई है तो वो भी नॉन मोटाई विदाउट फ्लैश का वाला होगा। ये सेल वॉल थिक है तो एक जैसी होगी, मतलब फंक्शन जो उसका है फिजियोलॉजिकली वो सेम होगा। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजिकली। ये टर्म्स मत भूलिएगा और इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। मॉर्फोलॉजिकली मतलब वो होता है दिखने में कैसा होता है। अभी गैमेट्स मैंने दोनों बनाए इक्वल साइज शेप और स्ट्रक्चर के बनाए, एक जैसे दिख रहे हैं ना दोनों गैमेट्स। मैं चाहती हूं तो इसको इरेगुलर शेप में बना देते हैं। ये गैमेट्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली सेम, ये वाला वाला नहीं होते ना। मॉर्फोलॉजिकली सेम मतलब उनका स्ट्रक्चर शेप और साइज सिमिलर होता है। तो आइसोगैमिक क्या होता है बेसिक हम देखिए ये एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन कितना हो गया, दो न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुआ ना। तो इसी तरीके से आप इसको माइंड में रख के ले लीजिए कि दो गैमेट्स जो है जो एक जैसे दिखते हैं। जनरल अगर लैंग्वेज में बोलेंगे कि दो गैमेट्स जो है वो एक जैसे सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको एडवांस लैंग्वेज में अगर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या फिर हम अगर उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम ये लिखेंगे कि two gametes that are physiologically and morphologically similar that will fuse and form a new zygote. Simple language word हो गया। ऐसे में एक जैसे फोर्थ आ रहा है फिजियोलॉजिकल एंड
आइसोगेमी, आइसोगेमी में इसका अपोजिट भी तो आएगा, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमी। आइसोगेमी के बाद इधर लग रहा है एन, लग रहा है आइसोगेमी के आगे एन वर्ड एक प्रीफिक्स लग रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन तो होइएगा आइसोगेमी, अनआइसोगेमी और एक और लास्ट वाला पार्ट है जो कि है वो अनआइसोगेमी। तीनों सिमिलर है, आइसो फिजियोलॉजिकली अनआइसो एंड देन अनआइसो। जैसे कंफ्यूज मत होइएगा, आइसोगेमी हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिजियोलॉजिकल अनआइसोगेमी हम करते हैं। फिजियोलॉजिकल अनआइसोगेमी में क्या होता है, दैट आर मॉर्फोलॉजिकली similar character but they show physiologically variation with plus and minus strain। दोनों के अंदर क्या होंगे, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन होगा, लेकिन दोनों गैमेट्स क्या होंगे। फिर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या है, एक आइसोगेमी में क्या दोनों कैरेक्टर जो कि क्या फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल दोनों सेम हो रहा था। इसमें क्या होगा, अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि एक होगा और एक नहीं होगा, उस वे में आप उसको याद रखिए कि एक होगा एक नहीं होगा। तो इसमें कौन सा वाला हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकली तो वो सिमिलर हो रहे हैं फिजियोलॉजिकल के अंदर। मॉर्फोलॉजिकल टर्म में लग गया ना फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल वाला वर्ड ही नहीं होगा उसमें। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, यानी उनके फंक्शंस जो है दो गैमेट्स के वो डिफरेंट हो रहे हैं। मैं ये हो गया फिजियोलॉजिकल अनआइसोगेमी। नेक्स्ट है हमारा अनआइसोगेमी। अनआइसोगेमी में क्या होगा, अब देख लीजिए कि ये है इसका अपोजिट होगा, इससे ही रिलेटेड होकर अपोजिट होगा। अनआइसोगेमी में होता है इन दिस फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट। अनआइसोगेमी जिसे हम बेसिकली अनआइसोगेमी बोलते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली बोथ द गैमेट्स आर डिफरेंट। The female are microgametes and smaller and more active where, sorry, the male are male इसमें this is female, this is male। अब आपको शेप से पता चल रहा है मेल जो है वो स्मॉलर है, फीमेल जो है वो लार्जर है, और दोनों फिर फ्यूजन कर रहे हैं, जिसमें जो छोटा है उसको बोलते हैं, छोटा कौन सा है, मेल गैमेट है तो उसको माइक्रोगैमेट बोलते हैं। एक इसका भी ये फ्यूजन वाला इसका डायग्राम हो गया अनआइसोगेमी का, ये एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड जो लार्जर है वो फीमेल वाला है वो मैक्रोगैमेट है। दो गैमेट्स होंगे, माइक्रोगैमेट्स, फीमेल मेल वाले गैमेट्स सेपरेटली, और ये दोनों गैमेट्स क्या है, फिजियोलॉजिकली दिखने में भी आपको अलग दिख रहा है और मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है दोनों। ये हो गया हमारा अनआइसोगेमी। मैं एक बार ये तीन वापस करा देती हूँ, ये इजी हो जाएगा। अनआइसोगेमी में क्या थे, दोनों गैमेट्स एक जैसे थे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल दोनों गैमेट्स सिमिलर थे। और फिजियोलॉजिकल अनआइसोगेमी के अंदर क्या होता है कि वो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर थे लेकिन फिजियोलॉजिकली वो अलग थे दोनों गैमेट्स। और अनआइसोगेमी में होता है कि दोनों गैमेट्स जो है दोनों में अलग है, मतलब एकदम डिस्टेंट है, फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली भी दोनों डिफरेंट गैमेट्स अपीयरेंस के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वाला है oogamete। लास्ट है oogamete। oogamete में क्या होता है, ये एक एडवांस टाइप, इट इज अ एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस अ लार्ज मोटाइल एग और ओवम फ्यूज होकर स्मॉल मोटाइल स्पर्म से। एग जो है वो क्या है, लार्ज है एंड इट इज
नॉन मोटाइल, और जो स्पर्म है वो क्या होगा, चलो इसको फ्लैजिला बना देते हैं मोटिलिटी शो करने के लिए, वो मोटाइल है। इसका भी फर्दर आप डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको बना दीजिए ओवा, इसको बना दीजिए स्पर्म, इसको लिख दीजिए मोटाइल, मोटाइल एंड इसको लिख दीजिए नॉन मोटाइल, फिर इनमें फर्दर फ्यूजन होगा और नीचे एक बना दीजिए एक सेल दैट इज जाइगोट वाली सेल। ये हो गया उगियन। फर्दर एक्सप्लेनेशन करती हूँ मोटाइल नॉन मोटाइल। फ्यूजन करना है, ये हो गया जाइगोट, ये हो गया कौन सा, फीमेल का ओवा एंड स्पर्म नहीं दे देंगे। ये है हमारा क्या, नॉन मोटाइल, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करेगा, और जो स्पर्म होगा वो मोटाइल है, वो इस ओवा के पास जाएगा, मींस वो बेसिकली स्विम करके ये चेंज करके जगह और वो जाएगा ओवा के पास, तो ये हो जाएगा मोटाइल हो गया। इसमें हमने फ्लैजिला लगा दिया, ठीक है, ये हो गया oogamete। oogamete क्या है, एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस अ लार्ज नॉन मोटाइल एग और ओवम, इसको आप ओवम लिख दीजिए, ओवम, ova ovum basically simply ovum fused with small non-motile sperm or embryzoid, egg is formed within the oogonium and sperm within the antheridium। अब ये बेसिकली कहाँ से हो रहा है, ओवम तो कहाँ से बन रहा है, ओगोनियम से, एंड स्पर्म जो कहाँ से बन रहा है, एंथेरिडियम से। एंथेरिडियम वाला हमने उसमें देखा था कॉलोनीज में, सॉरी एक जनरल अकाउंट रिप्रोडक्शन करा था ना, वॉलबॉक्स का, जिसमें वो सर्कुलर में होके कॉलोनीज में रहते हैं, सर्कुलर में सेल लेवल पे उधर एंथेरिडियम बन रहा है, वहां पे मेल वाले स्पर्म्स बन रहे हैं, वो फिर फ्यूजन कर रहे हैं, वो वाला फॉर्मेशन। इतना आप सब डिटेल में जाइए होगी, आप सिर्फ ओगेमिट याद रखिए कि ओगेमिट किस दो गैमेट्स हैं, सेपरेट है, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल है, एक मेल है फीमेल है, एक ओवम है एक स्पर्म है। ओवम वाला है बड़ा वाला है, लार्जर साइज है, स्पर्म जो है स्मॉलर साइज है, मोटाइल है और वो मोटाइल है और नॉन मोटाइल है, और फिर वो फॉर्मेशन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स। हमने तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन कंप्लीट करे, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, फर्दर उनके टाइप्स थे। एक रिव्यू, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में था हमारा सेल डिवीजन से, सेकंड था फ्रेगमेंटेशन से, थर्ड था हार्मोगोनिया से, फोर्थ था फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस, फिफ्थ था हमारा ट्यूबर्स से, और सिक्स्थ था हमारा बर्ड। नेक्स्ट हमारा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्यूजन ऑफ गेमेट्स नहीं होते हैं, सेपरेट स्पोर्स बन के वो नए गेमेट्स बना देते हैं। असेक्सुअल जो था वो 5 टाइप्स से था, वो था ज़ूस्पोर्स, एल्पेनोस्पोर्स, हैपेनोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स एंड ऑटोस्पोर्स। ये हो गए 5 टाइप के हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थे वो 6 टाइप के हैं फर्दर, उसमें होता है ऑटोगैमी, हेलोगैमी, आइसोगैमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogamete। 6 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए, फिर फर्दर 6 टाइप्स है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिप्रोडक्शन का चैप्टर एलडी का यूनिट फर्स्ट हमारे हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में सेकंड यूनिट स्टार्ट। बेसिकली सेकंड यूनिट में बेसिकली फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा, एल्गे से रिलेटेड, एल्गे क्या कैसे क्या फॉर्मेशन होता है, क्या टाइप ऑफ सेल्स होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है एल्गे का, पहले किस टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन होता है तो किस टाइप का होता है, ये हमने जनरल फीचर्स पढ़े। इसमें हमने फीचर्स पढ़े, फिर फर्दर इसमें जो जो बेसिकली आ रहे थे नॉस्ट्रॉक, ऑस्ट्रेटोरिया,
वगैरह वगैरह उनके मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन हमने रिव्यू कर लिया। फिर हमने दो टाइप्स की सेल आती है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का रिव्यू करेंगे हमने पहले कंप्लीट कर लिया। दो टाइप्स ऑफ सेल आती है, साइटोप्लाज्मिक सेल एंड क्रोमैटोमोनास सेल, जो बेसिकली सबने अप्लाई होती है दो टाइप ऑफ सेल्स, वो हमने कंप्लीट कर दी है। हमने मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ क्रोमैटोमोनास, वॉलबॉक्स, हाइड्रोडेक्टिल और प्लेटोफोरा भी हमने कंप्लीट कर लिया। नॉस्ट्रम के नॉस्ट्रल भी हमने कंप्लीट कर लिया। जस्ट फर्स्ट यूनिट हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में बेसिकली क्या है, हम फर्दर एल्गे के आगे जनरल कैरेक्टर पढ़े तो हम फर्दर, और हमने क्लोरोफाइट जो क्लास है वो हमने एल्गे की फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करी। अब हम सेकंड यूनिट में एल्गे की सेकंड क्लास के बारे में उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, दैट इज ज़ेब्रोफाइट्स। That will be covered in next class.